Salman Khan and his on-screen lady love Anushka Sharma, who are seen as wrestlers in the upcoming film Sultan, recently launched the much-awaited trailer of the film. The actors made some surprising revelations at the trailer launch. Anushka, now you've worked with all three Khans, so Salman, Shah Rukh and Amir. बस अब So- और क्या चाहिए? So Absolutely. what He's difference do you answered find- it for me. तो सुनूंगी नहीं तुम्हारा question में. क्या बोल रहे हो आप? So how is it working with Salman? What difference do you find in all the three Khans in the working style? I think I'll talk about him because we're talking Yeah, about okay. Sultan here. He is a very refreshing person to kind of work with because इनके साथ like what you see is what you get. I'm sure आप लोगों ने वो experience किया होगा. इतने साल से इनको जानते हैं. तो मैं जो आमिर और शाहरुख बिल्कुल वैसे हैं नहीं. So his thing is that he is kind of unfazed by anything that happens around him. करेक्ट, जो आमिर और शाहरुख बिल्कुल वैसे हैं नहीं. अब सर आप चाहते हो मैं आपको बताऊं कि आमिर और शाहरुख किस चीज़ में अच्छे हैं? प्लीज, मैं तो चाहता हूँ. मुझे उनके बारे में कुछ पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहूंगा कि मुझे आमिर और बस शाहरुख आपके बारे में बात करनी है यहाँ पे. It's because it's about two wrestlers and they understand each other really, really well and they understand each other's downs as well as their highs. And how sometimes, like my character says, that sometimes when you in life start focusing on one thing too much, आप कभी-कभी कुछ important चीज़ों को भूल जाते हो. तो ये जो ऊपर नीचे जाती है इनकी जो love story, वो भी आपको देखने को मिलेगा and how it impacts the story and how it impacts him in the film. सिंपल आदमी है जिसका कोई एम्बिशन नहीं है और इसको एक फाइस्टी सी लड़की दिख जाती है एंड ही फॉल्स इन लव विद हर. ऐसी क्या लड़की है, शी इज रेस्लर, ही इज नोबडी. एंड ऐसा लगता है कि जब मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा जो आपने देखा. एंड देन वो गलत पड़ जाता है क्योंकि शी इज सो स्ट्रॉन्ग हेडेड. बेसिकली जो होता है ना, कभी कभी किसी की ट्रेन लेट चलती है, वो ये उनमें से है. इस पिक्चर में वो सुल्तान को गलत समझ जाती हैं. एंड देन हाउ इट्स ऑल अबाउट सुल्तान, how he goes down and then how he comes back up with the help of the woman that he loves. And जो the औरत, her, is responsible for making him, then her responsible for breaking him, and then her again, because of her he starts making it again, and everything comes into this happy, beautiful love story which may not or may be the end of this film. It's a fully fictional story, एकदम काल्पनिक कहानी है और एक हिंदुस्तानी कहानी है, रिलेशनशिप की कहानी है. स्पोर्ट इसका बैकड्रॉप है और कॉमन चीज़ ज़िंदगी और रेसलिंग में एक ही है कि दोनों जगह लोग गिरते हैं, लेकिन ज़िंदगी का नाम है खड़ा होना, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म स्टैंड्स फॉर. It is getting more and more challenging for me each and every day. अब क्या हो रहा है कि you saw this look, now after this look, now I've got to get into another look, and is that journey is being it's a difficult journey for me now. But we'll work that out. लेकिन she was lucky that she didn't get injured. मेरे तो भाई इस पिक्चर में वाट लग गई. So as an actor, what do you देखिए think? नहीं, क्योंकि ये उठो जरा, मैं आपको आ जाओ थोड़ा सा इसको क्योंकि इन्होंने जब मुझे जब ये रोल सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगा. लेकिन जब वक्त आया करने का तो इन्होंने मेरे सामने पहलवान दे दिए, नॉट फाइटर्स, दे ऑल रियल रेसलर्स. तो जैसे जैसे कोई शॉट होता था उनको ऐसा लगता था कि ये रिंग में एक्चुअली लड़ रहे हैं एंड विथ मी. तो most of the shots in this film are real. The wrestling इसमें or MMA के there's no cable. Most of them is because of them. There's a lot of contact happening in there. तो ऐसा लगता था कि यार ये उठा के पटक रहे हैं, बहुत लग रही है. But then जब उनको उठा के पटकना था तो सब 120-130 किलो के fighters थे. And they're not our film fighters who will actually give you the leap and they will go down. They expect you to pick them up and throw them down.
That was the most difficult part of it. Now when a wrestler trains, he trains for an hour and a half, 2-3 hours. एंड शाम को वापस से 2-3. तो ये ट्रेनिंग भी चल रही थी रेसलिंग की, MMA की ट्रेनिंग भी चल रही थी, और उसके साथ साथ दिन में 6 से 7 घंटे शूटिंग भी चल रही थी नॉन स्टॉप. नॉन स्टॉप मीन्स फाइटिंग नॉन स्टॉप. द एवरी टेक बिकॉज ऑफ डियर सर हियर कि नहीं सर एक और एक ले लो ना, एक मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ ले लो ना. क्या है ना कि वो DOP ने एक कर लो ना. तो बिकॉज ऑफ हिम 3, 4, 5 retake. So that's 6 hours of, in those lights and training that used to take a toll on the body. The most difficult part in this film has been the langot. आज मेरे को समझ में आया what heroines feel when they go through all these swimsuit shorts and all that. Hi Salman. क्या हुआ था, अली was there. तो ऐसे यार वो शॉर्ट्स में थे, शॉर्ट्स यार सब पहलवान लंगोट पहनते हैं, नॉट लुक रियल. ऐसे वो लंगोट पहन लेंगे, विल डू इट. जब मैं वहाँ पर पहुँचा, वह 5000 का क्राउड है, और सब कुर्ते पजामे में, चप्पल में, शॉर्ट्स के अंदर. अरे भाई, मैंने बोला यार ये तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई. सो आई सेड यार अली, आई एम नॉट, देयर इज नो वे दैट आई एम गोइंग टू, चांस ही नहीं कि मैं वहाँ पर जाऊँगा. और कुछ औरतें भी बैठी थी वहाँ पर घूंघट के अंदर, सब जूनियर आर्टिस्ट. ऐसे ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो इसे फिर एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट ईद पर आएंगे. तो ऐसे ये डेट भी अच्छा है नेक्स्ट ईद का. एनीवे सेड चलो ठीक है. अब मैं एक लुंगी पहन के गया वहाँ पर, और एक कुर्ता में जाके बोला यहाँ पर अगर किसी ने चिल्लाया तो आई स्वेयर ऑन गॉड मैं आके मारूंगा. एंड व्हेन आई वाज वॉकिंग फ्रॉम माय वैन टू द वेयर द शूटिंग वाज द लोकेशन, मेरे आंखों में आंसू थे. आई वाज फीलिंग वायलेटेड. अच्छा, और मैं बिल्कुल शर्माता नहीं हूँ शर्ट वर्ट उतारने में, शॉर्ट्स पहनने में. मैं वो शर्मीला किस्म का आदमी हूँ ही नहीं इन मामलों में. बट व्हेन आई टू गो एंड टेक दैट ऑफ, and there's something hi and मुझे समझ में आ रहा था कि because I've seen the junior artists यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर, हर पिक्चर के अंदर you working with the same people, so you can understand the voices. ऐसे घूंघट खोलो, ऐसे नहीं खोलेंगे. It was the most difficult thing, but thank God that the people got used to the visual. और फिर वो फ़ोन के ऊपर उन्होंने तस्वीरें खींच के अपलोड करना शुरू कर दिया कमीनों ने. देखिए, शुरुआत में मैं एक्चुअली बहुत डरी हुई थी, बिकॉज पहली बात तो मैं रेसलर की तरह लगती नहीं हूँ. तो और हमारा एक परसेप्शन होता है रेसलर्स को लेके कि रेसलर्स एक पर्टिकुलर साइज़ के होते हैं. तो बिगिनिंग में तो आई वाज जस्ट लाइक लुकिंग एट आदित्य चोपड़ा एंड सेइंग आर यू श्योर ये कैसे होगा. बट मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ लोग लंबे मेरी तरह भी थे, लाइक सम इंटरनेशनल रेसलर्स. सो आई थॉट कि बस यही मुझे करना है. आई जस्ट हैव टू लुक टोन्ड सो दैट आई कैन लुक द पार्ट. एंड एनीवेज कैमरे पे तो आप थोड़े मोटे लगते ही हैं. और वैसे ही वेट कैटेगरीज होती हैं, वेट कैटेगरीज होती हैं. करेक्ट, वेट कैटेगरीज होती है. तो मेरी वेट कैटेगरी भी थोड़ी कम वाली थी, 15 किलो की नहीं 58 ना 58 की थी. बट जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगा था, इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. तो आप किसी के बहुत ज़्यादा करीब होके मतलब ऐसे करते हैं. तो आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज अ गर्ल यू नॉट सो यूज टू कि कोई आपके मतलब इतना पास लाइक रहता है. सो इन द बिगिनिंग आई हैज टू फील वेरी अनकम्फर्टेबल अबाउट दैट. बट धीरे धीरे जब मैंने वीडियोज़ देखे खूब सारे मैचेस के, एंड आई रियलाइज कि अगर करना है तो यू हैव टू गो ऑल इन. So then I went for it. I didn't care about anything. I really learned the moves properly, the technical way of it, and I'm very happy कि अब मुझे पता है. तो अभी कभी मैं wrestling देखूंगी तो मुझे पता होगा कि अच्छा ठीक है, अच्छा ये हुआ है. So I'm grateful for the opportunity, and I remember telling Ali all the time कि मतलब एक कि मैं I got very कि नहीं body double नहीं यूज़ करेगा, नहीं तू body double नहीं यूज़ करेगा. So I used to keep insisting to him because I felt like I've learned something, so I want to show it properly. So मुझे genuinely बहुत मज़ा आया. I worked hard, but I feel like I feel happy that I got to do it.